attacker, a diver, And, a swimmer. well, disappointing visuals out of Rawalpindi all day long. It was pouring, it was wet. Look at that. That's like a little lake. Unfortunately, match has been abandoned. This is Group A, Pakistan versus Bangladesh. It was an inconsequential match, but we were hoping for some action. Team Pakistan there enjoyed their bhajis and pakoras and their tea. And there's Mushi, as per some media reports के मुश्ताक अहमद जो हैं वो लीगल नोटिसेस भेज रहे हैं और असल में केस करने लगे. We'll talk all about that. I'm Fakhar Anam and you're watching the DP World Dressing Room. This is 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. Unfortunately, the match has been abandoned. Both Pakistan and Bangladesh walk away with 1 point each. Let's take a look at the table here. This is the group table. This is how Group A has finally ended. New Zealand and India both qualifying for the semi-finals with 4 points each. They played 2 games each and won 2 games. Bangladesh, Pakistan played 3 games each and have walked away with 1 point, courtesy the rain in Rawalpindi. Top 2 teams, of course, now move on to the semi-finals. So this is how it has gone down in Rawalpindi. With me in the DP World Dressing Room, I've got 4 fantastic gentlemen. First up, the off-spinner, fashion icon, broadcaster, pinch hitter, represented India proudly. I've got Nikhil Chopra. Nikhil, good evening and welcome. Good evening, thank you, sir. Looking sharp, looking good. Next up, ladies and gentlemen, the legend himself, the toe-crushing, batsman terrorizing, golf-swinging man, Waqar Younis. Wiki, good evening and Good welcome. evening, sir. Good to see you. 9 लाख खाए भूल गए हो. 9 लाख का मैं नहीं किया. मैंने कहा अभी छोड़ देता हूँ 9 लाख का और you know, but you know, if you insist, I can. नहीं मेहरबानी मैं आप कहते. If you want, I can. Next up, cricket royalty himself, the greatest all-rounder of all times. He has represented Pakistan proudly, captained Pakistan proudly as Sultan, swing of Sultan, and the Swan Sri Cham. Sultanic swing, whatever, man. Hello, good evening, and welcome back. There was a lot of tongue twisters. बड़े लोगों को गुस्सा आता है यार तू ना कर greatest all-rounder भाई. इसीलिए तो करता हूँ, चूंकि गुस्सा आता है. कि वो जो आपने सुबह मेम भिजवाया था मुझे. Exactly. You got that. And next up, ladies and gentlemen, represented his country with great pride, brought them a lot of glory, a lot of victories. We've got the man himself, Mr. Ajit Jadeja. Jadeja Baji, good evening. Good evening, and good welcome. evening. Welcome. Adab to all and Sat Sri Akal. Thank you. I love that haircut. So in between the innings, उधर बारिश हो रही थी, इधर सफाई हो रही थी. मौके का फायदा उठाना चाहिए. मौके का चौका लगाया आपने. But that hairdo looks good. Nikhil, you should comment to that because very you're good. you're the fashion guy here, basically. ये तो हमारे role model रहे. Now we're getting to that age. As long as you have hair on your head, you're happy. Yes. Forget about a haircut and a style. हाँ, इस पिच के ऊपर जड़ा मर्जी रंग हो, इस पिच पे घास होनी बड़ी जरूरी है. देखो पहली पिच के चक्कर में वो फंसे हुए हैं. उनके ऊपर काफी उंगलियां उड़ चुकी हैं ऑलरेडी. उनको जो है काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है. किस चीज का? इसलिए कर रहे हैं because we have nothing to say. You're actually right, by the way. मैच तो हुआ नहीं तो बंदा करे कि बात करे तो क्या करे. वकार, you know, जब आप 20 साल के होते हैं तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि वो यार तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ वहाँ बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़कियां, तू मेरे साथ आ. फिर जब आप 30 साल के होते हैं आप कहते हैं यार तू मेरे साथ आ, मैं तुझे बताता हूँ किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से जो है ना अच्छा रिटर्न तुम्हें मिलेगा. फिर 40 साल की उम्र में आते हैं तू मेरे साथ है, मैं तुझे बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट वाला मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ. फिर 50 साल की उम्र में आते हैं, हम कहते हैं ओए यार तू इधर आना, मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट से तुझे मिलाता हूँ, मेरा कार्डियोलॉजिस्ट तेरा सब कुछ सही कर देगा, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल. सो दिस इज अ मैटर ऑफ एज एज वी गो ऑन एंड टाइम. नहीं अभी आपके बाल लगाने के टाइम नहीं लेकिन बालों के नहीं, मैं इनमें से किसी के पास भी नहीं गया. अभी तक नहीं गए ना. अरे तो बड़ी बुरी. Starting from 20 to 50. No. कभी यार दी लोड़ ही नहीं पड़ी. Actually, that part I don't believe. The rest maybe I can accept. Crow is white. Yeah. Crow is white. Yeah. कांच चिट्टा है. Well, seem not the kind of tournament Pakistan and Bangladesh hoped for, but saving grace बारिश ने इन पे करम किया, दोनों को एक पॉइंट मिले, वरना There is no saving सिफर के साथ जाना होता. No, that doesn't matter now. 1 point के साथ की गाले और खजाना रख लेंगे 1 point के साथ.
So there is no saving grace. Unfortunately, bad tournament for Bangladesh. Most importantly for Pakistan, the host country. Lot to be learned from this performance by the Pakistan team. I'm sure players, management, coach itself must be quite worried and down, and rightly so. Performance अच्छी ना हो, expectation बहुत ज़्यादा थी. जिस तरीके से पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेल के आ रहा था, जीत के आ रहा था ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद आपने क्वालिफाई भी नहीं किया. सो या लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड to the public. I can understand winning and losing is part of it, but not the way Pakistan lost. Unfortunately. आकिब ने कल की press conference, but now I'm hearing a lot of things between the break. जब हम लोग wait कर रहे थे, so I was going through various newspaper and media things, and it seems like that the public has not responded well to that press conference. They said that's just not good enough. पॉइंटर्स क्या थे उसके? What did he say? He said कि यार हम क्या पूरी टीम को चेंज करके पूरी अंडर-19 की टीम नहीं खिला सकते. देखें यही टीम कुछ अर्सा पहले जो थी अभी सीरीज जीत के आई हुई थी, इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ था. फिर उन्होंने स्पिनर के ऊपर भी बोला कि देयर इज अ रीजन कि हमने एक स्पिनर और हमारी स्ट्रेटजी देखे ना वो दूसरी टीम में जो उन्होंने कंपैरिजन किया इंडिया की टीम. सो देयर वर जस्ट टू मेनी, यू नो, इट वाज मोर लाइक he touched everything, but I see, मेरा मतलब ये मेरा opinion नहीं है खाली, क्योंकि मैंने पूरी खुद नहीं सुनी, मैंने उसके snippets सुने, लेकिन जो reaction आ रहा है on different channels and different other cricketers and all that and everything, that seems to be very dismissive of this press conference. Why do you think that is? देखिए इस तरह की situation में आप जो मर्जी कह लें, I mean, you know, emotional calm है, everyone's hurting, they're not going to take anything, whatever you say. You know, I've been through all this couple of times, so I know it is hurting to the coach also. It's hurting to the cricket board also. So you got to take this pill. It's a tough one, but you have to take that and move forward. जहाँ तक टीम की बात है कि जी टीम अंडर 19 खेल रहे थे, चेंजेस तो मेरा मतलब है होंगी. बिकॉज अगर आपने खेलने का तरीका बदलना है ना, स्टाइल बदलना है, अगर आपने अपने मॉडर्न डे आई थॉट का मॉडर्न डे शुरू कर दी है क्रिकेट कुछ अर्सा पहले, जो मैंने कल भी मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस पाकिस्तान के गिनवाए थे कि प्ले स्टार्टेड प्लेइंग एग्रेसिवली. आपको फ़खर ने ऊपर से करके दिखाता है, आपको इवन रिजवान ने भी करके दिखाया. तो ये अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं या प्लेयर्स चेंज नहीं कर, देखिए आप एज अ कोच, आप उसी में भी कहते हैं ना कि एज अ कोच आप बता सकते हैं, बल्ला जब आपके हाथ में है और आपने अंदर चले गए 22 गज पे, तो खेलना तो आपने है. तो अगर आप उस तरह से नहीं खेलेंगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि चेंजेस नहीं आएंगी. फिर चेंजेस आएंगी, फिर देन पीपल ऐसे लोग आएंगे जो खेलना चाहते हैं या जो खेल सकते हैं उस तरीके से. सो आई फील कि यू नो, मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर 19 की सारी आएगी, बट ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो मॉडर्न डे के क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, फील्डिंग को भी आपने देखना है. राइट. उस दिन वसीम भाई ने कहा ना थ्रो ही नहीं ठीक है, तो फिर आपने वो भी एक एस्पेक्ट देखना. सो द प्रॉब्लम्स आर देयर. Yeah, you have to sit down and solve those problems altogether. ये आकिब जावेद के स्टेटमेंट का एक हिस्सा हमारे पास एक्सेप्ट आया है. वसीम, I'll take this to you because उन्होंने कहा है कि his statement is, I don't scold players at all. In our culture, it's common for coaches to scold, beat, or even abuse players. But I don't believe in that. I respect them and help them improve at their own pace. I'm not the type to scold or criticize anyone. Beat? हाँ, वो कहते हैं कि दूसरे कोचेस तो मारते नहीं हैं. Beat, bit extreme, but scold and all. I agree with Akib that there are respectable people who represent their country. तो उनको आप समझा ही सकते हैं प्यार से, या और तो कुछ नहीं कर सकते. वो प्रोफेशनल इनफ हैं, दे नो बट गलती क्या हुई है, हमने कहाँ से सीखना है, हमने कैसे इम्प्रूव होना है, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे आना है. ये अब कोच भी चेंज कर देंगे, सेलेक्टर भी चेंज कर देंगे. आई एम जस्ट सेइंग फॉर, तो अगर हमने लड़कों को कॉन्फिडेंस भी देना और उनको बताना है कि इट्स ओके टू लूज, इट्स फाइन, बट एज लॉन्ग एज यू ट्राइंग टू विन द गेम, डोंट गो इनटू योर शेल. वो ऊपर से ट्रिकल डाउन होके फिर जो जूनियर्स भी टीम में आते हैं उनमें चला जाता है. ऐसे ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट कम्स डाउन. फखर जमान की आप बात कर रहे थे वकार, यू नो दैट यू नो ही शोड एग्रेशन एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स हमने उनकी इंजरी के बारे में सुना. सो इंटरेस्टिंगली दैट इंजरी इज रियली part of the problem that had taken him down, Wasim. He's been dealing with a thyroid issue
which is actually yes. He, What is thyroid? Thyroid, जो thyroid glands ही होते हैं आपके okay. उसके. So he's been dealing with a thyroid issue, which जिससे वो अपनी recovery कर रहे थे, and he needed some more time, Ajay, Nikhil, to recover. But then because of the ICC No, but he trophy played came- the whole month here in IL. Yes, he was there and he was dealing with it. He's just, Okay. he's made a statement that हुआ है because a lot of speculation की जा रही थी कि वो शायद अब अपनी retirement announce कर देंगे या वो अपनी यार injury एक वजह से तो दोबारा हमारे पड़ जाएंगे. टेलीविजन पे आके एक ने कह दिया है वो कल एक बड़ा प्लेयर रिटायर हो रहा है, पुट्टी खोल दूंगा. हाँ. 100% जब श्योर नहीं हो तो क्यों ये सुनसनी खेल खबरें देते हो जब पता ही नहीं है. Unfortunate, but I think a lot of this has to do with कि ओह मैं न्यूज़ ब्रेक कर दूं, मुझे ज़्यादा टेंशन मिल जाए, मुझे ज़्यादा एनजी मिलेगी टेंशन उनसे काम नहीं गलती करनी नहीं है. You're right. Yeah. Let me go back, Nikhil, to Joss Butler's interview after that defeat against Afghanistan. उन्होंने एक बड़ी interesting बात बोली थी कि consider all possibilities. We'll consider all possibilities. Is he hinting that he's walking away from white ball cricket or white ball cricket captaincy? Possibly, and when we were listening to that interview as well, and I think Waqar Bhai pointed it at that moment in time that maybe that hint is that he's looking to walk away from the sport and as a leader, losing another trophy, not being able to qualify. He's taking the onus on himself. The responsibility as a leader. He's not been able to try and get the right sort of players in right positions, the role identification. He's probably taking it on himself, and he's probably stopped enjoying the sport. One thing is when you're enjoying the sport, you're given added responsibility as a leader to go out there and lead the pack, and because of the kind of experience that you have, that you're able to identify, bhai, ye player mera ye role kar sakta hai, ye player mera ye role kar sakta hai. I mean, that's good on him saying that, yeah, maybe I'm not now been able to motivate or get the best out of my team, and maybe it's time that I see the sun setting on my career. So that's why he's thinking maybe there are possibilities as well. He'll probably go back, have a chat with the family and say this is what he wants to do. But the good thing is at least there's no knee-jerk reaction at that moment in time coming, and he never blamed any of the players. He took everything on himself as a leader कि यार शायद मेरी गलती हुई, और बतौर कप्तान या जो भी लीडर ऑफ द पैक था ना, कहता यार मेरी टीम जो है ना वो अलग है, जो भी गलती हुई है वो मेरे से हुई है. अगर गलती हुई है, यू टेक इट ऑन द चिन एंड यू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, तभी आपको इतनी वो इज्जत मिलती है ड्रेसिंग रूम की. बिल्कुल ऐसे ही है. Ajay, the other part of his statement was that introspect, am I part of the problem or am I part of the solution? I think that's what I've got to work out. Strong statement. Yeah, it is a strong statement because agar Kaptan himself feels that he's not sure whether he's part of the problem or he's the solution. I think he was the solution. I mean, if you ask me, I don't know what he meant because, watching Joss Butler over the years, he's probably one who opens the innings, sets a tone, plays longer terms of innings, and that's been their problem. उसके बावजूद वो खुद पीछे खेलता रहा. अब यही इंडिया या पाकिस्तान में होता ऐसा कोई प्लेयर कप्तान, तो हम कहते यार ये तो पीछे से आ रहा है. मतलब आई थिंक इंग्लैंड में एक एडवांटेज है निखिल, आई थिंक कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे इतने फैंस का और मीडिया का लव है. मैं तो मानता हूँ ये लव है, इसलिए प्रेशर भी पड़ता है. इंग्लैंड में इतना फर्क नहीं पड़ता. दूसरा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आप देखें जो उनके कैप्टन्स है ना, उनका जो रोल है वो सिर्फ मैदान के अंदर तक ही होता है. कोई कप्तान और दूसरे में मुझे नहीं लगता कोई फर्क भी रहता है लाइफ में. वो बस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता. जो सिलेक्शन है उसमें भी वो शायद नहीं बैठते. वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का जो कप्तान है और जो हमारा कप्तान है इंडिया पाकिस्तान, इफ आई एम रॉन्ग अबाउट पाकिस्तान प्लीज टेल मी, इज मोर ऑफ अ लीडर. वंस एक कप्तान बनता है ना, उसकी बड़ी ड्यूटीज हो जाती हैं, छोटी छोटी ड्यूटीज भी. मतलब कप्तान को ये भी ध्यान रखना पड़ता है ये मेरा जो लड़का है इसके घर पे क्या हो रहा है. आई डोंट थिंक इंग्लैंड में पड़ोसी का भी किसी को पता होता है क्या हो रहा है. तो आई थिंक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश में भी उतना ही प्यार है. जिस तरह से कप्तान का रोल है और जो इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कैप्टन, स्पेशली आज की डेट में, 50 साल पहले अलग होगा जमाना, वो बिल्कुल अलग है. लेकिन वो मेरे हिसाब से ही इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. अगर वो क्योंकि जिनको देखा है उनके आगे खेलते हुए, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही बेहतर प्लेयर हैं उन लोगों से. जाट यू थिंक कि ये जो अभी तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज, कप्तान के इश्यूज नहीं है, वो डोंट यू थिंक कि कप्तान खुद अपने सर पे ले लेता है, या उसको
ये दिया जाता है कि जब भी उनका उसको घर का भी ख्याल रखो, उसका ये भी करो उसको, या एज अ प्लेयर आप फील करते हो कि यार मुझे ये सारा कुछ करना है? नहीं, आप आई थिंक लेगेसी भी है ना। आप अपने कप्तान की बात करते हैं, आज भी एक नाम लेते हैं तो कप्तान ही बोलते हैं आप। हाँ। क्योंकि एक तो फिर जो अगला बनता है उसका भी दिल करता है या उसका भी रोल बनता है कि वो डिलीवर करें, उस तरह से देखें। आई थिंक इंग्लैंड में जो कप्तान बनता है वो कप्तान है बिकॉज इस टूर के लिए वो कप्तान है। आई थिंक हमारे यहाँ जब इंडिया का कप्तान बनता है उसकी आप सुनते भी हैं, यार मेरे कप्तान ने ना मेरे पे हाथ रखा एक बार और मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी लें आप, उन्होंने अलग तरह से करा है। उससे पहले कपिल पाजी थे या अजू भाई थे या सर आए थे खुद। तो आई थिंक हमारे यहाँ हम कप्तान को देखते भी दूसरी तरह से ना। हमारा कल्चर देखें, हमारी जो सिर्फ क्रिकेट में क्यों बाकी जगह में भी देखें। ऑस्ट्रेलिया में आप लोग कमेंट्री, आप ही थे शायद कमेंट्री कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आया बैठा उस ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम नहीं सॉरी कमेंटेटर्स बॉक्स में, जो पीछे वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है वो उससे ऐसे बात करता है जैसे आम आदमी है। ये आज के दिन प्राइम मिनिस्टर मार्क वॉ था हमारे साथ को कमेंटेटर। सो जो उनके आई थिंक उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनका जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है एल्बनी समथिंग लाइक दिस। तो उसको अब मार्क जूनियर कहते हैं, हे एल्बो हाउ आर यू, व्हाट्स अप मेट। तो ये तो वो वहां का कल्चर है, उस तरह से कप्तान में फर्क नहीं आ जाता। लेकिन हमारे यहाँ कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो जब देते हैं तो मैं मानता हूँ कि सोच के दी जाए, सिर्फ क्योंकि स्ट्रेटजी के लिए तो वैसे ही इतने कोच रखने। नहीं ठीक है आई अंडरस्टैंड दैट, और ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। बट डोंट यू थिंक कि जब आप कुछ हारते हैं तो फिर उसी के ऊपर होनी चाहिए? नहीं, कप्तान से पहले कोच का गला काटा जाता है। जबकि सारा कुछ जैसे तू बता रहा है कि जी सारा कुछ वो फील करता है कि ये मेरे साथ कंधे पे आ गया है, और कंधे पे फिर he wants to make decisions also। बिल्कुल। ठीक है, वो सिलेक्शन में भी he wants to make a decision, he wants to make a decision playing 11 में भी, किस तरह कितने बजे बस जाएगी, कितने बजे खाना खाएंगे, he get involved in all of that। But when it comes to when you lose or when you don't do well, who gets the beating? So मैं मानता हूँ कि ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, और ये आज नहीं मैं बोल रहा, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सालों से जब हमारे यहाँ कोचेज आए उसकी वजह ये है क्योंकि इस टीम में छोड़े क्रिकेट किसी भी टीम में कप्तान का मतलब सिर्फ वो अपॉइंटमेंट नहीं है, कैप्टन लीडर है। अब अगर आप आधा दे दो कोच को, आधा दे दो कप्तान को, आधा दे दो सिलेक्टर को, अब कौन बना रहा है 11 की टीम? अगर तीनों ने लड़के बनाना है, जब एक लीडर है फिर उसकी टीम है, उस पे आप भरोसा करें तभी उसके हाथ में दे। उसके ऊपर एक बंदा और बिठा दो, फिर एक बंदा और बिठा दो, तो ना किसी काम का होता है वो, बल्कि मेरे हिसाब से नुकसान होता है। क्योंकि जब अब सवाल पूछना है, नेचुरल है क्योंकि टीम अच्छा नहीं करी है, बाहर हो गई है, आम पब्लिक हो या मीडिया हो, वो सवाल तो पूछना चाहती है। बिल्कुल ऐसे। अब आप पूछेंगे किससे? आपने भेज दिया आकिब को। अब मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, बट प्रिज्यूम कर रहा हूं कि मानिए आकिब और कप्तान रिजवान थे, भाई 10, 8, 9, 10 की तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो तो वही खेलते हैं, कोई भी बने। बात कहाँ फंसती है? बात फंसती है यार, मुझे लगता है यार एक स्पिनर खिलाना चाहिए, तुझे लगता है कि नहीं यार एक ऑलराउंडर खिला लो, तीसरे बंदे को लगता है नहीं सीमर खिला लो। अब जिसने खिलाना है उसकी चलती नहीं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती है। फिर जब रिजल्ट खराब होता है ना, फिर शाम को बैठते हैं हम, नेचुरल है, ओ यार मैं तेनू क्या सी मैनू क्यों खिलाया। फिर अगले मैच क्या होता है कि फिर वही जब सिचुएशन फंसती है, तो पिछली बार क्योंकि मैं गलत हो गया था तो इस बार मुझे आपकी सुननी पड़ती है, फिर गलत हो जाते हैं, फिर तीसरी बार हम तीसरे की सुनते हैं, तो ना हम कहीं जाते हैं ना आते हैं। तो बेसिकली फिर कोच ना ही रखा जाए, क्योंकि नहीं, फिर या उसके हाथ में दे दे, कप्तान रख लो, मैनेजर रख लो और स्टाफ दे दो। नहीं, मैं ये वाले कर दो भाई, जैसे वसीम भाई ने कहा, इट इज नॉट अ क्विक फिक्स एंड इट इज नॉट वन सॉल्यूशन। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि जिसकी भी एक की रिस्पांसिबिलिटी रखेंगे ना, तो फिर आपको, मुझे, पब्लिक को, आवाम को और टीम को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीम को भी पता होगा कि हम यहाँ जिस तरह से खेलने आए हैं, ये जो बंदा है ना जो बोल रहा है वैसे खेलना है। फिर क्या है कि वो बेस्ट जो है तब निकलने का चांस है, और फिर जवाब भी उसी को देने दें। That's an interesting take. We have to go to a break. I know, Nikhil, you want to add to that, but you can add as soon as we come back from this break. You're watching the DP World Dressing Room. Stay with us. All right.
right, welcome back to the DP World Wrestling Room. I am Fakhran. You're watching 10 Sports, our content coverage of the ICC Champions Trophy in Rawalpindi. It was raining all day, so the match has been abandoned. Both Bangladesh and Pakistan walking away with 1 point each. We were talking about different aspects of this ICC Champions Trophy, and the last discussion that we were having was about the captaincy. Somehow it ended up in the captaincy discussion, and selectors and who to blame and who not to blame, and so forth and so on. Nikhil, you wanted to add something to it. I just want to ask कि जिस तरीके से फुटबॉल में होता है मैनेजर टीम चलाता, क्रिकेट में कप्तान, और he has to make all those calls, बट वो एक स्ट्रॉन्ग एक आदमी भी चाहिए जिसको आप पिक करते हैं जो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में अपने लड़कों को बैक करे. भाई मेरे पास ये 11 लड़के हैं, कमिंग फ्रॉम अ स्पिन पर्सपेक्टिव, आप मैच हार रहे हैं, आपको 4 विकेटें चाहिए, 60 रन चाहिए. सबसे आसान काम है कि ना आपने अपनी फील्ड खोल के बॉल डाल दी, आप सिंगल निकाल के आपके बॉलिंग के एनालिसिस बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है, कप्तान कहता है कि नहीं यार एक काम करते हैं, 6 फील्डर अंदर लगते हैं, एक बाहर वाला आउटसाइड चांस लेके देखते हैं, फ्लाइट डाल, विकेट खरीदने को देख, 2-3 विकेटें मिल गई, विल बी बैक इन द गेम, कुछ करे, और उसके चक्कर में 3-4-5 चौके लग जाएं या वो छक्के लग जाएं. सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में आते हैं, सिलेक्टर कहते हैं जी इनके तो बॉलिंग एनालिसिस बड़े खराब है भाईजान. तब कप्तान को खड़े होकर बोलना चाहिए नहीं यार वो आसान काम था. आई वॉज एज अ लीडर आस्किंग हिम टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स. सो यू नीड लीडर्स हु बैक द प्लेयर्स. तभी तो आपका प्लेयर जो है, जो मुझे लगता है कि जाके वो दिल खोल के खेल सकता है ना, क्योंकि आपको पता है मेरे कप्तान की बैकिंग है. नहीं तो वो फेयर और फेलियर के चक्कर में वो अपना बच के निकलता जाएगा. आपको कभी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर नहीं निकल के मिलेंगे. हमारे कल्चर में कप्तान का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है सिलेक्शन में, और ही हैज़ टू बी वेरी फेयर. कप्तान की जो फर्स्ट जॉब होनी चाहिए ना, दोस्ती यारी अपनी जगह, कि इस किस लड़के ने मुझे मैच जिताना है, कौन इस टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी जगह इस टीम प्लेइंग 11 में बनती है, जो मेरा स्क्वाड पिक कर रहा हूँ मैं, क्या वो 15 के 15 11 में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कैप्टन, स्पेशली इन क्रिकेट. सो और वो भी हमारे कल्चर में वही जैसे आप कह रहे हो कि जब पता है कि एक लड़का अच्छा प्लेयर है, अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं, कप्तान को पता है कि मुझे जहाँ इसका दिन आई मुझे अकेला मैच जिता देगा. सो इसलिए कप्तान का सिलेक्शन कमेटी में बैठना ज़रूरी है. हम हमेशा कप्तानी जब की है, हम सिलेक्शन की मीटिंग में बैठे हैं, हमारे सेलेक्टर्स ने हमारी बात भी सुनी है, हमारे डिसएग्रीमेंट भी हुए हैं, मगर मोस्टली कप्तान बात अपनी मनवा लेता था, मनवा लेनी चाहिए उसको. But Wasim, the key word here is कि दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए, intellectual honesty होनी बड़ी जरूरी है. But I suppose इस लेवल पे दोस्ती यारी हो नहीं सकती. नहीं भाई, I don't think. I think that's what I think, but I'm probably wrong. But we've seen contrary to that too many times. But at least you'll have a solution then. अगर लगता है क्योंकि वही कप्तान है, उसने टीम ले जानी है. अभी आप पिछले 2-3 साल से जो है, आप मुझे बताएं कि आप लोग तो शो भी कर रहे हैं, क्या आप रोक पाए अपनी कॉन्वर्सेशन भी एक जगह पे? क्योंकि मैं कई बार सुनता हूँ, किसी को सुनता हूँ, कहीं देखता हूँ, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड से लेके वो जो कप्तान है, बीच में कोच, बीच में सिलेक्टर, बीच में रिस्पॉन्सिबल है कौन? पहले ये तो डिसाइड कर लें कि ये टीम अच्छा कर रही है तो क्रेडिट तो पूरी टीम को मिलना यार. हमारे यहाँ तो स्ट्रेट वे वो जो भी कोई हो चेयरमैन को चेंज कराने की कोशिश करते हैं. तो फिर सीधा तो एक बार चेयरमैन चेंज होगा, अगली बार सिलेक्टर चेंज होंगे, अगली बार कोच चेंज होगा, उसके अगली बार कप्तान चेंज होगा, तो आप घूम फिर के वापस तो वहीं आ गए. बल्कि जो इकोसिस्टम है उसमें हर जगह आपने इनसिक्योरिटी डाल दी है. चलिए मैं एक जरा मैसेज देना चाहता हूँ. वो मैसेज ये है कि कल परसों जो मुश्ताक ने अपनी वीडियो बना के हमें भेजी, उसको हमने कहा था भेजें. इट वाज जस्ट फन एंड क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स, क्रेडिबल मींस क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स. आप थोड़ा जा काम कर लो, थोड़ा सा होमवर्क कर लो एंड देन वो न्यूज़ लगाओ. उसमें हमारा कोई, आप लोगों की बेइज्जती हो रही है जो ट्विटर पे लगे हुए हैं. 92 की टीम ने क्रिकेट का सत्यानाश किया है. ए मजाक सी, गेट अ लाइफ. और मुशी से भी बात हो रही थी हम दोनों की स्पीकर पे, हमने आधा घंटा बात किया. वी वर लाफिंग अवे, वी वर इन टीयर्स कि लोग इतने सीरियस हो चुके हैं. लाइफ, स्टॉप बिलीविंग इन फेक न्यूज़, डबल चेक, ट्रिपल चेक
and then believe. एक्चुअली हमारे मजाक में, इस वाले मजाक में, Yeah. क्योंकि ये आप लोगों ने मुशी भाई को तंग किया, ना, मैंने it's उनको your फोन fault. किया, हाँ, It's your मैंने- fault. मैंने- You are the got the captain. video. नहीं कैप्टन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप ये वीडियो बना, आप ये वीडियो बनाएं, ये वीडियो बनाकर भेजें। अच्छा वसीम, द फनी थिंग इज वो वीडियो चलाया भी हमने यहीं पे। अगर कोई बड़ा सीरियस वीडियो होता तो हम उसको क्यों चला रहे होते, या अपने शो पे चला रहे थे, हमने यहीं पे चलाया। वो कहते हैं बेवकूफ पर सर पे सींग नहीं होते, अगर होते तो पता लग जाता बेवकूफ है, वो हम में से ही होते हैं। ऐसे ही है। Yeah. वो हुआ। सींग हो गए तो पता लग जाएगा बेवकूफ है। So it was remarkable कि एक मजाक था। भाई इनके ये बेस्ट ऑफ बेस्ट और बडीज बड़े लोगों ने मुझको फोन करके क्या है, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, चंगा कीता ही अन्ना ते केस कीता ओए अन्ना गुस्सा, सामने आके बात करो ना। नहीं बट यू अंडरस्टैंड, वकीलों ने फोन कर दिया हम आपका केस फ्री लड़ेंगे, ठीक है। Yeah. अगले मेरे अपने दोस्तों ने, आई हैव टू से दिस, आई हैव नॉट 1 2 3 फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप जिन्होंने वो जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनकी न्यूज शेयर की है, यार ये क्या हो रहा है, एंड यू नो दिस इज वेरी शेमफुल। मैं तो गले पड़ गया हूँ आज दोपहर को 2 लोगों के। मैंने जो आप चाहते थे वो हुआ है। अरे वाह, यही चाहते थे। ये दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट। देखिए इससे क्या हुआ, एक चीज तो ये पता चल गई, मजा आ गया, मजा तो आया ही आया। एक चीज तो पता चल गई कि बहुत सारे जिन जिन अखबार के लोगों ने, नुमाइंदों ने या चैनल के नुमाइंदों ने इस खबर को सही समझकर चलाया है, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कोई फोन करके आपसे नहीं पूछा कि उन्होंने ये किया है, आपका कुछ वो statement फिर है। वो हमें किसी ने फोन कोई करते या मैसेज करते वो कम करना पाइना सी। किसी वो ने कहते हैं कोई- nobody bothered. पंजाबी में कहते हैं कम जुबान दी मौत। दैट्स द मोटो, कम नहीं करना, बस पढ़ के कहते हैं हाँ भाई वाह जी I वाह। know. It is just very unfortunate. डू योर प्रॉपर जॉब मैन। या एक दफा फिर मुश्ताक अहमद ने जो स्टेटमेंट दिया था वो एक मजाक का हिस्सा था जो यहाँ से चल रहा था और हम इधर तक लेकर आए थे। ना वो 15 करोड़ और 20 करोड़ तो छोड़ दें, वो 15 रुपए और 20 रुपए का भी हर्जाना नहीं करने लगे यहाँ पे किसी को। उसको खुद मुसीबत पड़ जानी थी। उन्होंने भी तो वकीलों ने पैसे देने पैसे। कई वकीला ने क्या ऐसी मुफ्त करांगे, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। इसमें गलती ये भी तो है ना, हम अपने आप को सीरियस इतना ले रहे हैं कि लोगों को लग रहा है सीरियस मैं वही तो हैरान हूँ कि लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। फिर देख नहीं रहे, इसका मतलब ये वो सीरियस ले रहे हैं, सीरियस वही मैं कह Yeah, that's the मैं thing. कि कोई हमारे साथ चल रहा हो पिछले 5-7 दिन में और जो थे हमने सुने, they are enjoying it. Yeah. Jonathan Trott on Afghanistan's victory yesterday had a very interesting statement to make. He said, no side would ever again take Afghanistan lightly after they knocked England out of this Champions Trophy. No, I don't think so. फोन तो डराने लग पे नहीं बट ठीक कह रहे जो आई एम विद Jonathan Trott. Even before this ICC Champions Trophy started, we said on our show that team can upset teams, and they have in recent past. Last year का World Cup देख ले, so their coach is on Can the they right upset track. Australia He's also? confident and he Can they- believes in his boys, and Can the they- boys are responding to his call. Yeah, I have agree. a feeling, Waqar, that it's not going to be that easy for Australia. No, no, I could be wrong, but वो कहते हैं gut होती है, मुझे gut कह रहा है कि it won't be that easy for Australia. They might win, but तेरा it might gut है not भी be बहुत easy. बड़ा। मैं तो डिस्कशन से एक बात कर रहा हूँ कि do you, वसीम भाई, with all that experience, do you think they have what it takes to beat Australia? Absolutely. Yes. Okay. After that, but the game, the way they won that game, जिस स्टेज थे वो निकले थे 15 पे 2, फिर जिस तरीके से वो इब्राहिम ज़दरान ने आके बैटिंग की है, 177 की जो शॉटें मारी हैं, उसके बाद गीले बॉल से डिफेंड करना 320 odd, wet, literally very wet ball. So that also as a team उनमें belief भी आ गया, confidence भी आ गया. And if this game happens, if there's no due, it'll be it could be one-sided for Australia, but once if they're on song, they can beat any team in the world now. That's their beauty now. Yeah, Absolutely. Wasim, the important They've thing- won more games than your team, my Yeah. friend. Last 10 games if you pick So, in ICC. not only that, I no, think, I'm saying I think right anybody now- who thinks that it's one-off thing. No, I don't think is it's a fooling one-off themselves. thing at It's all. just I that- think वसीम ने जो बात की बिल्कुल उनके सही, पास मैं आर्सेनल इसीलिए कह पूरा रहा हूं। मौजूद है अब. But Sir, the most important thing I think that we must appreciate greatly is that if you look at the way the game went yesterday, Wasim, Yeah. the way they handled pressure. पहले बैटिंग में Yeah. 2 विकेटें गिर गई 15 रन पे, फिर वो थोड़ी सी पार्टनरशिप फिर गिर गई, फिर पार्टनरशिप,
And then the way they handled pressure towards the end of the game, जब बॉल गीला था जिस तरह आप कह रहे थे, Yeah. और जो रूट जो था वो अनस्टॉपेबल लग रहा था, उनके साथ वो जी में निकल. No, बकर भाई एब्सोल्यूट राइट. जो आप कह रहे हैं कि वो प्रेशर इस टीम को आप देखते हैं ना, वो प्रेशर आदमी को तब होता है जब उसको पता है एक सिचुएशन हो, आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. जिस तरीके से 2 विकेटें गिरी, ज़ादरान खड़ा होके कहा कि यार मैं खड़ा होके बैटिंग करूंगा, फिर नीचे आके जैसे अजय भी हमेशा बोलते आए, हर प्लेयर का अपना रोल है. गीला बॉल था, राशिद खान लीडर ऑफ द पैक स्पिनर को बोल रहे कि इसको यहाँ डालना है, इस प्लेयर को यहाँ डालना है, इस प्लेयर को यहाँ डालना है, उस प्रोसेस को फॉलो करते रहे. तो वो प्रेशर मुझे लगता है कभी किसी प्लेयर को वो फील नहीं होने दिया, बिकॉज दे हैड अ गेम प्लान इन प्लेस. फॉलोइंग दैट प्रोसेस, तो वो प्रेशर नहीं नजर आया. So you can see that team when they come on field, either bat or ball, they want to win. The hunger to do well against the best sides in the world. The hunger you can see collectively, not individually, collectively as a unit. So that's very, very important. They're comfortable where they are individually. Yeah. World cricket में ले लो, Rashid Khan is one of the best cricketer in the world. In white ball ले लो, red ball ले लो, in every format. So bowlers में leader of the pack वो है. Yeah, sorry. So that means कि अगर जब next अफगानिस्तान का मैच है, we can go for golf, can't we? Yeah, भाई good बहुत point. दिल जीते हैं. Good point. Very Yeah, good. दूसरा sorry. सॉरी आई थिंक बिलीफ ही हो गई है ना उनको. वो सिचुएशन से जो निकलना होता है क्या, बॉल तो आप तब भी डाल रहे होते हैं या बैटिंग वैसी कर रहे होते हैं. जब टफ टाइम्स आता है, जब बिलीफ नहीं होती तो आदमी लड़ने को तैयार नहीं होता, कहीं छोड़ देता है या वो हिट मार के आउट हो जाता है. कहीं पे ऐसा लगता है कि चलो यार चांस लें. अब इन लोगों को बिलीफ हो गई है कि यार हम हैं ही इधर, कि इससे भी हम निकल जाएंगे. और इस मैच से मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत बड़ा मैच था. बहुत. क्योंकि पिछला टूर्नामेंट हुआ, इस टूर्नामेंट में स्टार्ट किया, पहले मैच में चलो खराब दिन हो गया तो बिल्कुल खराब हो गया, वो ठीक है. लेकिन क्लोज आके जो हारना या जीतना होता है ना, वो बिलीफ पे ही रह जाता है. Yeah, वो कल उन्होंने करके दिखाया है. वेरी ट्रू. बिलीफ, यकीन की जीत, इसको कहते हैं यकीन की जीत. यहाँ पे फिट आता है यकीन की जीत. ये जगह है जहां पे आप बोल सकते हैं यकीन की जीत. ये जगह है जहां पे मेंशन किया जा सकता है यकीन की जीत. हो गया ना 3-4 दफा. यकीन आ गया साथ में, यकीन आ गया. I think a quick one before break पे जाना तो इसके बाद चला जाए. I think the next discussion 5 minutes should be on Bangladesh, what they should do and how can they improve, how they haven't improved in they've been playing cricket since 99, that's a Yeah, long time. yeah. So उस पे भी डिस्कस कर सकते हैं. नहीं कर सकते. We're not going on a break. We can open that. In fact, you've opened that discussion. So why don't you take the lead on that, Wasim? Because yes, So I you have think been pointing that out. They have to invest in their domestic cricket. They have to invest the pitches in their domestic cricket, and of course they have to invest in youngsters. Ab Mahmudullah being a top player, no doubt, one of my favorite players in white ball cricket, test cricket, बड़ा ज़बरदस्त player था, and मुस्तफिकुर भी. But अब उनका time हो गया है. अब पता नहीं किसने pick किया है, वो महमूदुल्लाह ने, वो out of touch भी लग रहा था, batting भी नहीं थी हो रही, fielding भी नहीं थी हो रही. तो कोई यंगस्टर लाया होता तो कम से कम आगे 5-8 साल चल तो सकता था. Wasim, interestingly, Bangladesh की जो under 19 team है, they've been doing really well recently. They've been doing really, really well. बट वो कोई ट्रांजिशन नहीं हो पा रही, वो प्लेयर्स ऊपर नहीं आ पा रहे. थोड़ा सा इमेज ठीक करना पड़ेगा. बांग्लादेश प्रीमियर लीग ठीक ठाक होती है, इस दफा पता लगा कि फिर प्लेयरों को कुछ को पैसे नहीं मिले. ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई भी ओनर आता है उसका बैकग्राउंड चेक करे. रेपुटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल. अब सब इंटरनेशनल प्लेयर्स को पता है वहाँ जाएंगे पहले पैसे मिलेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे. सो दिस ऑल्सो trickles down to the first class cricket, and also invest in your first class structure, invest in your pitches. This is not a rocket science. अगर हमने देखा कराची की पिच जो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, मैंने कराची की पिच आज तक ऐसी देखी नहीं है. जिस ग्राउंड्समैन ने बनाई आईसीसी के, हम हेल्पर्स तो हमारी थे, बट बाउंस भी था, क्रैक्स भी थे, घास भी था, बॉल निकल भी रहा था, ऑन दी अब लोग शॉट भी मारे थे, वो 300 भी कर गए साउथ अफ्रीकन. सो या ऐसी पिचेस बनाई जा सकती है वहाँ पे. वहाँ पे जाओ, गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आता उनका. वसीम भाई, आपने बांग्लादेश की बात की है. बांग्लादेश ने पैसे कुछ लड़कों को नहीं दिए. आपके हैं रिलेशंस, ताल्लुकात हैं? तो मेरे भी नहीं देते उन्होंने पैसे. I love that place. I'm just trying to sort of. तेरे नहीं मिले? मुझ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 3 ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ. नहीं, बट ये तो लाइक आई सेड, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. जैसे पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आईपीएल बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
Big South Bash, Africa वाली, yeah, Australia South वाली African big League, bash, yeah, Big yeah. Bash. वो कहते हैं केस कर दो जो कौन जाए मुश्किल केस होते पूछ जाके तो नहीं, मैं but केस that's नहीं where कर you guys सकता go wrong. Whoever, I think the president अब नया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, फारूक शायद, I think I know him, but that's his responsibility. मेहरबानी थोड़ी जो सिफारिश हाँ यार करते वकार दे पैसे तो दे दो हाँ, बाकी छोड़ो। छोड़ो। तो बट इससे रेपुटेशन खराब होती है मुल्क की भी और उसकी प्लेयरों की भी। सो प्लीज मेक श्योर यू गेट द ओनर्स हु हैड द मनी और गेट द मनी बिफोर हैंड फ्रॉम द ओनर्स एंड देन यू पे द प्लेयर्स, जो प्रॉपर तरीका है। Okay. I have a friend who called in, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं ना पिचेस की, वसीम भाई ने जो बात बोली है उसको सिर्फ एलैबोरेट करने को और उनको समझाऊंगा जो हमारे व्यूअर्स हैं जी। कि जो अच्छी पिचेस करने उसका मतलब क्या, वो पूछ रहा था मेरे से क्या मतलब है। मैं कहा अच्छी पिचेस का जो इनका मतलब इस पर्टिकुलर नहीं जनरली जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी क्रिकेट है, जो लड़का यहाँ खेलने आया है बांग्लादेश के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, इंडिया के लिए, वो वहां पे सक्सेसफुल हुआ है या विकेट्स लिए हैं या रन बनाए, इसलिए वो यहाँ पहुंचा है। तो जो वो यहाँ आया है वो अलग तरह की पिचेस पे खेलता हुआ है, बिल्कुल रैंक टर्नर्स, आई मीन तो उन विकेट्स पे बॉलिंग अलग होती है, अलग बॉलर सक्सेसफुल होते हैं और अलग तरह के बल्लेबाज सक्सेसफुल होते हैं। फिर आप जब इस लेवल पे आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, विकेट्स आर टोटली डिफरेंट, ऑपोजिशन प्लेयर्स को आउट करने का तरीका अलग है। तो इसलिए जो ये बात करते हैं कि पिचेस अच्छी करने का मतलब ये नहीं है कि पिच अच्छी करते ही प्लेयर हो जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो क्रीम निकल के आएगी वो इन कंडीशंस में सक्सेसफुल होती हुई आएगी, तब जाके होगी। और भारत की क्रिकेट के लिए स्पेशली सिर्फ पिचेस नहीं, मैं ऐड जो करना चाहता था कि बॉल है हमारे यहाँ, जो बॉल चेंज हुई थी 92-93 में, उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, 92-90 से पहले 50-70 साल से क्रिकेट चल रही है। हाईएस्ट स्कोरर हिंदुस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें हमेशा 5 नंबर या 6 नंबर या 4 नंबर वाला बैट्समैन होता था। उसकी वजह थी क्योंकि हम कंचों से खेलते थे, तो कंचा जो बॉल है वो शुरू में 5-7 ओवर बड़ा आउट होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता था। 1-2 साल ट्रांजिशन में लगे, अब आप पिछले 10 साल उठा के देख लें या 20 साल उठा के देख लें, अब जो हाईएस्ट स्कोरर होता है साल के एंड में वो हमेशा ओपनिंग बल्लेबाज होता है, क्योंकि अब जो बॉल इस्तेमाल होती है उसमें शुरू में कम होता है, बाद में ज्यादा होता है। तो ये छोटी चीजें जो बोलते रहते हैं वसीम भाई हो, वकार हो, हम हो, तो ये इसकी वजह लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि वो है जगह जहां पे ये प्रोडक्शन फैक्ट्री है, राइट। वहां पे सक्सेसफुल होने के लिए अलग स्किल्स चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट जो पिचेस हैं, जिस तरह की क्रिकेट होती है वो एक अलग होती है। और दूसरा, जब ये लीग से लीग की परफॉर्मेंस, फॉर इंस्टेंस PSL ले लें आप, बांग्लादेश प्रीमियर लीग ले गए, इन लीग्स की परफॉर्मेंस से अब लड़के पिक करते हैं ना, लीग्स में एक आधा तेज बॉलर होता है, बाकी स्पिनर होते हैं, मीडियम पेसर होते हैं। वही लड़का जब आता है इंटरनेशनल में, वह पांचों के पांचों तेज है। तो हर तरफ से या सो वो भी आपने देखना है कि लड़का क्या वो प्रेशर कोप कर पाएगा, पिचेस भी डिफरेंट है, सो ये भी चीजें सिलेक्टर्स ने देखनी होती है। ऐसे ही है। एक सवाल निखिल, कंचा बॉल का अभी जिक्र किया अजय ने, एग्जैक्टली हम उसे पंपा कहते हैं, हम उसको पंपा कहते हैं, ये जो आपके वहाँ पढ़ा है इसको जरा डिफाइन करें, व्हाट मेक्स इट अ कंचा और अ पंपा, व्हाटएवर वी वांट टू कॉल इट। देखिए जो अजय भाई कह रहे हैं कंचा बॉल, के मायने समझा दोगे कंचा होता क्या है? कंचा पहले वो जो शीशे वाला रॉक हार्ड, वो हार्ड बल्ले तोड़ते हैं बेसिकली ये वाले बॉल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कंचा बॉल जिस तरीके से उसकी गेंद की सिलाई भी टू थी, पीस भी होता है कहीं, 2 पीस ही होते थे। वो जो सिलाई भी थी कंचे की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारे टाइम पे सोनेक्स की वो बॉल होती थी उसकी सीम भी कम उभरी हुई होती थी, जिस तरीके से आज की डेट में वो कुकुबरा वाला बॉल होता था, लेकिन कुकुबरा वाला बॉल जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था। एक तरफ लेदर जो है वो दोनों तरफ हार्ड होता था। जो अब बॉलें आ रही हैं, जो अजय भाई कह रहे हैं, एक तरफ अगर लेदर सॉफ्ट है वो शाइन ज़्यादा करता है और दूसरी तरफ वो सॉफ्ट लेदर रहता है तो रफ हो जाता है। तो एक फास्ट बॉलर के लिए, एक स्पिनर के लिए गेंद ड्रिफ्ट हो सकता है, थोड़ा बॉल वो स्विंग होता था। कंचा बॉल, हार्ड बॉल, वो लेदर जो है ना उसको लैकर चढ़ा होता है बहुत ज्यादा, वो लैकर उतरता था, 20 ओवर तक लैकर वो पपड़ी उतर जाती थी, तो फिर वो उसको स्विंग कराना या स्पिन कराना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि गेंद की सिलाई भी नहीं पकड़ सकते थे। ऑलराइट। तो वो कंचा, बट इफ आई मे जस्ट ऐड, जो वसीम भाई कह रहे थे, जो वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, जो इन्वेस्ट की बात है, जितने भी बोर्ड हैं who are going through this developmental और transition phase, if you look at that scope of 5 साल ना, वसीम भाई, in my humble opinion, आप जब आपका प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है, इंटरनेशनल टीम्स के लिए, you get some of the best coaches to come. Outside the box, you get some of the best coaches from around the world, pay them the same salary as you're paying an international coach, but you get them to work with the under 16.
आपकी वहाँ नर्सरी किसी ने नहीं जाना, आना है सबने मेन टीम के साथ ही आना भाई है। अंडर ताकि 16 घूमना अंडर फिरना 19 लगा के रहे। बच्चों को आप डेवलप कर सकते हैं. यू कैन गेट देम टू अंडरस्टैंड द ट्रेड सो दैट अपने दिमाग में और मुझे सीख के पाकिस्तान then they learn the में tricks आई of डोंट the नो अबाउट अदर बोर्ड्स, पाकिस्तान का मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तानी कोच है फॉर आर्ग्यूमेंट से उसको मिल रहा है 10 लाख रुपए महीना, वो कि बाहर का आता है उसको अब देते हो $40,000 महीना. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. एक फी होनी चाहिए. पाकिस्तान टीम का कोच है, जो फॉरनर को मिल रही है वही पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. Good point. Good point. छोटे बच्चों को आई आप एग्री. बेहतर यहाँ मोल्ड पे कर भी सकते हो. सबको सेम मिलनी चाहिए. छोटे बच्चों को आप मिल रही बेहतर है। मोल्ड कर सकते हैं. यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे खाने के नहीं, दांत सब और- फकर को मिल रहा है. यहाँ पे ले, ये हम सबको बराबर मिल रही है. यहाँ पे खाने के दांत और हैं, दिखाने के हम दांत सबको और. बराबर मिल रही है. ये गलत फहमी है वैसे हमारी. कुछ लोगों को इस टेबल पे बहुत ज्यादा मिल रही है आपसे. सर मजा आ रहा है, doesn't matter, पैसा तो आनी जानी चाहिए. ओए हाय, आगे ये बात. थोड़े ये बात. अरे. All right, hold on to that thought, guys. We're going to have some more discussion about this. And hashtag Ask the Room is up next. हम लेंगे एक वक्फा के बाद hashtag Ask the Room. Your questions and our panelists and their answers. Stay with us. This is the DP World Dressing Room. You're watching 10 Sports. All right, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Anam. You're watching 10 Sports. I've got four fantastic gentlemen with me. Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram and Ajay Jadeja. Hashtag Ask the Room का सिलसिला शुरू करने लगे. Remember that ball will be signed by our experts and dispatched to you by DP World. But before we get to that, we wanted to tell you about the DP World initiative, especially DP World Beyond Boundaries, जो कि आज के match abandon है, so there are no kits to give away. But every time there is 110 kits are given away to grassroots level cricket players around the world to promote the game of cricket. And this is in association. I have a with question. ICC. जी. लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा है कि ये आपकी जो किट्स हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है. आपने एक्सप्लेन किया था पहले, एक दफा दोबारा कर दें. So please. basically, this is a partnership between DP World and the ICC. ICC, of course, speaks to different boards and different जो councils हैं उनकी या associations in different countries. They ask कि कहाँ पे promote करनी चाहिए, कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पे लोगों के पास या access नहीं है या they can't afford. So that's how these then kits are dispatched by DP World to the right people, to the right area. So ICC basically gives us the guidelines as to where these kits have to be done. They're A-quality kits. They're not just, वो कभी-कभार होता है ना, वो वसीम के वो ये giveaway है तो बस वो है. No, they're premium quality kits because we want the children or the youngsters who get them to play the game in, absolute safety standards are maintained and done. So it's time for us to start the hashtag Ask the Room process. But before we do that, gentlemen, I want to share something very, very important with all of you. And that is that since we started on the 19th of Feb and we're on the 27th of Feb, so 8 days in to this ICC Champions Trophy. और हम अपने videos हैं वो सारे के सारे YouTube के ऊपर post करते हैं. So just on YouTube alone, this morning, we had crossed 26 million views worldwide. So thank you to all of you out there, wherever you are, no matter what country you're from. A big thank you from all 5 of us here in the dressing room for actually watching, sending us those comments, those lovely messages, and so forth and so on. So Sorry because of बस एक रिक्वेस्ट है, वो बड़े रैंडम रिक्वेस्ट भी आते हैं, उसको भी बुला लें, उसको भी बुला लें. और इंडियन एक्स प्लेयर बड़े महंगे ने और उनके पास टाइम नहीं है. एवरीबॉडी इज कॉन्ट्रैक्टेड विद सर्टेन चैनल्स. इसीलिए करंट को बुलाया है. मैं इसीलिए यार ये आपने नहीं, एक्स प्लेयर सच्ची में अच्छा पता है आपने क्या किया है? उनको फंसवा देना है आपने. जब उन्होंने जाना है ना वापस, इनकम टैक्स वालों ने आना रहते हैं इधर. नहीं वो गल सुन नहीं, जो नहीं है वो ज्यादा महंगे ना. हम तो यही है. होता है, हर एक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर पहले से ऑर्गेनाइज होते हैं. इट्स नॉट के बुला लिया तो वो आ गए. प्लान करना पड़ता है सारा कुछ. We would love to have other guests, but everybody is very busy with their schedules. Absolutely. All right, let's start off with the hashtag Ask the Room. ये पहला सवाल मैं लेता हूँ वैभव शर्मा. वैभव शर्मा, आप सवाल कर रहे हैं. Love the show and the surprise guests are a great touch. Question for Wasim. Do you ever want to be a selector or coach for the Pakistan team?
To be honest, Vaibhav Sharma. बड़े लोग कहते ये हैं आप लिख लें, बेस्ट क्वेश्चन में लिख लें। हाँ यार. All right, Vaibhav Sharma. Okay. जी. So a lot of people still on and off either criticize me, have a go at me कि गल्लां करा लो, इससे खुद कुछ करता नहीं है. जब मैं पाकिस्तानी कोचेस इंक्लूडिंग वकार जो बैठे हैं इधर काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा कोच बन के सैक हुए हैं, जब मैं इनका हाल देखता हूँ ना किस तरीके से आप लोग बदतमीज़ी करते हैं कोचेस से, तो बदतमीज़ी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी. आई वॉन्ट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, वाई यू हैव टू पे मी, मैं मुफ्त अवेलेबल हूँ. मुझे जब कॉल करो कैंप लगाना, मैं कैंप में चला जाऊँगा. मुझे इन्वॉल्व करो कि जी आ जाएं, ये टूर्नामेंट आ रहा है, लड़कों के टाइम गुजार लें, मैं टाइम गुजार लूँगा. बट I am 58 years old. I have a family, I have a 10-year-old daughter. I have 2 boys. I want to spend time with them. But like I said, I'm always available, even free of cost, to have the camp going for the kids whenever I have the time. मैं चला जाऊँगा. पाकिस्तान टीम में कोई टूर्नामेंट आ रहा है, उनका कैंप लगता है, I'll spend time there. ये मैं कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता इस उम्र में, जो कि बेइज्जती तो तुम वैसे ही बड़ी कर दे हो, because बदतमीज तो हम हैं. I'm sorry. I know exactly what you're saying. I think इसमें एक और चीज भी बड़ी जरूरी है वसीम, and that is for the Pakistan Cricket Board to at least, for the players to take some initiative to ask you कि sir we need some help, yeah, if you could just join us. Even I mean, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अभी आपने खुद ही ऑस्ट्रेलिया कह दिया है कि मैं बगैर चले किसी मुआवजे के भी करने को तैयार हूँ. नहीं, you know? अभी वसीम भाई आप तो बात कर रहे हैं ना कोचिंग वगैरह की, Yeah. वो मैं आई एम टॉकिंग ऑन अ बिगर spot. I mean, Okay. I'm talking about why not as an advisory sort of kind of post. अगेन तोपों के रुख मेरी तरफ हो जाएंगे. टीम ने खेलना ग्राउंड में है. वसीम भाई तोपों के Look, I can't take that तोपों से नहीं stress. डर सकते, तोपों के डर पे सिस्टम नहीं ठीक है. I don't get scared of anyone apart from ऊपर वाला, and maybe sometimes बीवी. Most Good call, very good call. बहुत अकलमंदी की कॉल की. Well played, वसीम भाई. इधर हेडलाइन न ला देना. वसीम अकरम ने कहा कि वो अपनी बीवी से अच्छा. हाँ नहीं, but I'll just say कि because I'm 58 years old, I've been diabetic for 25 years, I can't take unnecessary stress. I want to be with my 10-year-old daughter जो बड़ी हो रही है. ठीक है, मैं 2 महीने से दूर हूँ, मैं नहीं मिला. I miss them. And अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं प्रॉपर जॉब करना चाहूँगा. If I accept something, it means I have to be there 24/7. I can't just be there for 2 days and disappear for a month. It won't be fair on a job. That's the reason, Vicky. That is very good. Fair because I think that is, and this is when, you know, certain people say that the chairman of the cricket board, Pakistan Cricket Board, also needs to be a guy that is full time on the job. No, I mean, no disrespect to anybody, but it requires to be a full-time job, Yeah. and I know you appreciate that. अच्छा जनाब, महमूद इरफान साहब का सवाल है. Okay, again now इसी टॉपिक के ऊपर आता है और महमूद इरफान कह रहे हैं, love the show guys, thank you very much, you're fearless in taking questions. So here is my question to you. We always talk about foreign coaches. Why not for once hire a foreign chairman? लो. वैसे नाम क्या बताया था? वैसे नाम क्या बताया था? बोल महमूद इरफान, मैंने नाम इसका लिख भी लिया है यहाँ पे बंदे महमूद साहब, वैसे बात आपने बहुत पते की है. आपकी बात में थोड़ा वजन लगा है हल्का सा. ये कभी सोचा नहीं था मैंने. इसी है ना, हमेशा हम फॉरेन कोचेस के बाद एक बार फॉरेन मगर वो जॉब ऐसी है, पीसीबी चेयरमैन की जॉब इन नॉट अ वे, बट यू नो वो जगह ऐसी है कि अटेंशन बहुत मिलती है वहाँ पे. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे, व्हाटएवर हैपेंस. तो आई डाउट कि हमारे लोग बाहर का बंदा लाने की वहाँ इवन सोचेंगे भी. वसीम भाई, आपने सुना नहीं, वकार भाई ने वेल बोल्ड कर दिया. क्या कहा है? आपने सुना नहीं? क्या? प्लीज बता. जज मैंने नहीं सुना. मैंने तो नाल बैठा है फॉरेनर चेयरमैन. वसीम भाई के भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं. सारे तो बच्चे ने. नहीं, एक इट्स अ गुड क्वेश्चन है और अपने शो को सूट भी करता है, क्योंकि मजाक वाला ही काम है, क्योंकि आप कैसे बाहर से लाएंगे. बट मे बी देयर इज अ थिंग टू लुक एट कि जो जॉब है उस पोस्ट की has many aspects to it. Yeah. There's an administrative aspect and there is a sporting Right. aspect. जो sporting aspect है वो शायद उसके लिए आप अलग कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो आई थिंक पब्लिक है या फैंस हैं इस गेम के, उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता कि आपने कितनी प्रॉफिट करी है, या आपने स्टेडियम कैसा बनाया है, या आपने किस तरह से चलाया है उसको, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है. Right. आई थिंक फैंस, प्लेयर्स और फ्यूचर प्लेयर्स, जो बच्चे भी हैं, क्योंकि फ्यूचर को देखना जरूरी है, पास तो जो अब संभाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है. उनको एक ही इंटरेस्ट होता है कि उनका जो खेलने का सिस्टम है
वो कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे विकेट्स की बात की, बॉल की बात की, तो वो उसको शायद आप कोशिश करें कि इसको दो बाइफरकेट कर देना, तो एक तो क्या है आपकी लड़ाइयां कम हो जाएंगी, आपके जो चेयरमैन बनने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं लोग, वो आधे हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो रहेंगे जहां पे इकोनॉमिक्स है XYZ की, बट ये जो ग्राउंड पे जाके कौन कोच होगा, कैसी क्रिकेट चलेगी, वो सिर्फ शौकीन मिलेंगे आपको, ऐसे ही है। क्योंकि नेचुरल है। अफगानिस्तान में जब पैसे नहीं थे तो कोई भी चेयरमैन बनता होगा ना, ऐसे ही। अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान टीम जहां पहुंच गई है वहां पे भी अब शुरू हो जाएंगे, वहां पे भी आने लग जाएंगे। अभी तक वही लोग लगे हुए थे उनके साथ जिनको ग्राउंड पे जाके बैठना है, शौक है, और वही उनकी जिंदगी है। जय शुक्ल। अच्छा चलो जान दिए ਤੁਸੀਂ ਜੇ तो शॉट मारनी है तो मार लो। नहीं शॉर्ट तो है ही है मेरे को ऑल द तो फिर टाइम। फौरन मारो। नहीं, तू मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी तो मैं जवाब देता है। शॉर्ट ये है कि मुझे ये बताइए कि जो आप ये कहते हैं कि जो बारू लाओ, तो जो पहले बाहर वाले आए हैं उन्होंने क्या किया है? मेरा ख्याल है वो जो क्वेश्चन कहे ना मोहम्मद इरफान ने, महमूद इरफान साहब ने, वो इसी को मद्देनजर रखा है कि हमने हमेशा सुना है कि फॉरेन कोच ले आओ, फॉरेन कोच ले आओ, तो क्या तीर चला के चले गए फॉरेन? वो बेकार बताता हूँ। फॉरेन कोच का सिर्फ जो है ना, वो हमारा जो मीडिया है ना, जो हम बोलने वाले अब जो बैठते हैं, हम उसका थोड़ा लिहाज कर जाते हैं, हम उसका थोड़ा लिहाज करते हैं कि ये बाहर से आया है, इसको ऐसा नहीं कर। अपने की तो अपनी अभी देख ले ना, पहले भी देखा आपने, मिनट लगता है चमड़ी उधेड़ने में। अच्छा अपने नाम प्लस मैं चले प्लस मैं जो बाहर का आई थिंक हमारे वहाँ भी ये चलता था थोड़ा सा। उसकी वजह ये थी कि ये माना जाता है कि हम नहीं, क्योंकि हम इसका माना जाता है कि हम जो अपने अपनी मुल्कों में है कि यार जहाँ बड़े हुए हैं, जहाँ से आए हैं, सिस्टम्स तो अलग ही है ना। कल्चर तो समझ आनी चाहिए ना, कल्चर समझ आनी चाहिए। बट फिर भी हमारे वहाँ भी आप माने या ना माने, हमारे यहाँ भी डिविजन्स तो होते ही हैं, खेलने का तरीका अलग होता था। आई मीन आपके वहाँ अगर माने तो प्लेयर देख के आपको पता चलता था यार ये कराची का प्लेयर है और ये लाहौर का प्लेयर है, मतलब एक दो डिवीजन। ठीक है। हमारे वहाँ आप देखें तो दिखता था आपको ये साउथ के प्लेयर हैं, दैट्स अ स्टाइल ऑफ प्लेइंग। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए हमारे वहाँ एक जमाना था जब ये चली थी कि बाहर का ले आओ, बाहर का ले आओ, क्योंकि ये ना बायस नहीं होगा किसी की तरफ। हाँ। दूसरा, आप जब इस सिस्टम से ऊपर आए होते हैं, आपको बहुत लोगों ने मदद की होती है लाइफ में, तो आप फिर ऑब्लाइज्ड होते हैं। आपने ठीक कर लिया ना, कैसे ठीक किया? नहीं, हमारे वहां मैंने कहा ना, जो एक आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो कप्तान थे, ठीक हो गया। क्योंकि फिर वही उसने जवाब देना है टीम का। बाकी वो नहीं पड़ता कहीं किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। वही मैं कहा ना, इसको अलग कर लें, क्योंकि जो बाकी मोस्टली पीपल जो घुसते हैं बोर्ड में, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट का नहीं होता सर, उनको किसी को शौक नहीं है, वो कौन सा जाके क्लब का मैच देखता है। मेरा एक सवाल है आपसे कि why did Gary and Jason leave so unceremoniously, Waqar? Any idea? I mean, why did it had to be like this in the middle of things? I don't know. To be very honest, I think it's better कि हम इन दोनों को भी फोन करके इनका भी एक वीडियो मंगा लेते ताकि हमें पता चले कि हुआ क्या। जय शुक्ला का सवाल है जनाब। जय शुक्ला कहते हैं आसरूम फैनम B3, we know you're an outstanding pilot and can fly around the world, but क्या आप पतंग फ्लाई करने का कंपटीशन कर सकते हैं विद वसीम अकरम, वकार यूनुस, सर अजय एंड निखिल? दैट विल बी अ ग्रेट वीडियो फॉर अस कि कौन किसकी पतंग काटता है। अच्छा एक तो ये कि हम तो लाहौरी है तो हम तो नहीं, but unfortunately बसंत has been banned from last 4-5 years and rightly so, because लोगों ने एंड में क्या किया था, वो डोर के आगे ना वो तार बांधनी शुरू कर दी थी, तो कटे ना, जब कटती थी वो डोर से, तो मोटरसाइकिल पे जब वो गिरती थी तो यू नो ज्यादती होती थी। तो हम भी हर चीज का ना बिला वजह, जे पैसे नहीं थे ना उड़ाओ ना गुड्डी, फिर ये डोर दे पैसे नहीं, तो यू नो वो मजा ही डोर का था। वो असल तो खेल ही वो था ना। मैं रात को नींद नहीं थी आती मुझे एक्साइटमेंट से। क्या है यहाँ पे है पतंगबाजी some areas where I see some उन्होंने बाहर शहर से बाहर करते हैं और वो है, but there are very rigid rules here of flying drones or flying anything like that, including kite flying, right? So beaches के ऊपर kites आप देखेंगे, बीच पे आप वो kite वो खड़ी रहती है जी, वो एक वो है काइट बीच, एक जगह है काइट बीच का नाम है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, कल परसों हम गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे तो वहां से ना ये एक होल आता है जहां से बिल्डिंग्स सारी की सारी ऐसा उनको नजर आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो उसके ऊपर ना एकदम मुझे दिखी कि ऐसे ना कि जैसे एक पतंगे हैं। मैंने कहा यार ये पतंगे हैं, और बाज पता चलो पैराशूट तो बंदे थले आ रहे हैं। वो स्काई डाइविंग होती है यहाँ पर, बिल्कुल वो स्काई डाइविंग अभी भी वेलकम टू दुबई। वैसे जब ऑफ डे एक पतंग का मैच हो ही जाए। यंग किड, यू रिमेंबर, मैं रात को मुझे नींद नहीं थी आती कि सुबह बसंत है।
पैसे जोड़ के गुडियां लेनी, डोर लेनी, फिर तनाएं डालनी, आप रहे भी तो मजांग एरिया में, तनाएं, फिर मैं लुटना भी बड़ा सा ਅਸਲ ਗੇਮ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ ਚਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ नहीं ਹੋ ਆਪ। तब I'm talking about 80s man, when I was 15 years old. वो डोर में वो ट्यूबलाइट तोड़ के वो बनाते थे या अभी उसको। वो जी, जी, कचरा हो गया, जी, exactly, जी, वही जी। exactly. डोर लगाई जाती थी सीजन से पहले, उसको क्या जाके कहते हैं? उधर अंदरून लाहौर में ढूंढते थे बंदे के यार मांझा, दिल्ली ढूंढेगा। मांझा, मांझा मांझा फेरा मांझा लटाई Yes. और वहाँ पे भी चरखी वहाँ वाली पे भी डोर, टीम होती थी। पिन्ना, ओए पिन्ना खरीदे, नवा पिन्ना लेकर आया हूं मैं। चरखी कौन पकड़ेगा उसका भी फरक पड़ता जी, था जी, ना। जी, जी, तो एकदम ये से। वहाँ पे भी टीम है, बिल्कुल। और उसके पास वो स्किल नहीं है, आगे वाले के पास वो नहीं है। हाँ तो उथे भी फुटवर्क है। ਉੱਥੇ ਵੀ फुटबॉल वसीम भाई वहाँ पे भी वो The risk, सफेद वाली जो it डोर was है, all उसको a सद्दी risk. कहते थे। हाँ? एक तो मांझा होता था जो काटने के लिए, और या। फिर सफेद वाली डोर होती थी पीछे लगा के, उसको सद्दी। सद्दी सद्दी। कहते हैं। नहीं, वहाँ पे सद्दी भी नहीं, सफेद साढ़े वाली सद्दी सद्दी कहते कहते हैं। हैं। हमारे पूरा वो फिर मांझा पिन्ना बना या वो होती थी वो चरखी, चरखी होती थी या फिर- पूरी की पूरी डोर अच्छा, मांझे हम वाली वो होती लंबी थी। कर लेते थे, वसीम फिर भाई। सद्दी लगाते थे, नहीं। फिर उसको इतने एनु की कहते हैं। गेट गिट दिस वाज हिट बिट जो असी कर रहे हैं खुशी दी। I remember that, एक हाँ। गिट है और कराची में से यहाँ मतलब हाँ, होता था। छोड़ रहा है। जो बहुत छोड़ता था ना यार, मैं लपेट रहा हूँ भाई, ये बहुत छोड़ रहा है, बहुत छोड़ रहा है, ये बहुत so छोड़ it's रहा है, probably लपेट रहा come from there, पतंग में है, लपेट में। आइंदा फखर गाल कर लगा ना। है। भाईजान और जब आप बात कर रहे हो तो इधर मशीन होनी चाहिए, हाथ से नहीं चलेगी, वो मशीनें लगानी पड़ेगी। तो गुस्सा नहीं खाना, गुस्सा नहीं खाना। भैया जय शुक्ला, थैंक यू वेरी मच। हमें पतंगबाजी करने की जरूरत नहीं, हमारे पेचे वैसे ही लगे रहते हैं आपस में हर वक्त, हम एक दूसरे का भोग काटा कर ही रहे होते हैं वैसे। सही। बट बचपन के दिन याद दिला दिए। Yes. Thank you, Shukla Thank you, Jay Shukla. I mean, that was really a special वो। प्रोडक्शन की तरफ से एक सवाल आया वकार यूनुस साहब के लिए, मैंने नहीं किया, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ने पुट्ठा किया ही है। सवाल होएगा। नहीं, Anyway, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस। उन्होंने कहा है कि आप कि फखर आपका हमेशा जो है वो टो क्रशर के तौर पे करवाते हैं मारते रहते हैं, इंट्रोडक्शन। हाँ। व्हाट वाज योर फेवरेट टो क्रशिंग यॉर्कर दैट यू एवर बोल्ड, द वन दैट यू वुड से दैट वाज द बेस्ट? ये प्रोडक्शन देखिए कितना अच्छा मैंने साफ good सवाल question. किया। आपकी नेगेटिविटी है आपके दिमाग के अंदर कि आपने सोचा कि अब आपसे बुरा सवाल करेंगे। He's on to something. ये आपकी अपनी जो बंदे के मन की साथ सोच है। होता रहा हो, बंदा वही एक्सपेक्ट करता है ना आपसे। जैसे आपको आता है ऐसा, तो फिर मैं सोचता हूँ कि आया कोई सवाल है हो जाए। प्रिपेयर होना पड़ता को याद है एक पर्टिकुलर यॉर्कर होता है ना डिलीवरी? नहीं, मुझे- मुझे स्पॉट कर दिया प्रोडक्शन। है। मेरे को याद आई है थिंक लॉर्ड्स में तूने ग्रैम एक को किया। ग्रैम एक को मैं देखा है वो अपनी आंखों। नहीं वो नहीं, सवाल और वो वैसे हर तो- मैच में। नहीं वैसे तो बहुत सारे वो तो बोल्ड है ना, वो बंदे, बोल्ड हाँ। हुए हैं ये एलबीडब्ल्यू, तो वो कह रहे टो क्रशर को बंदा लगाना किसी- भी ज्यादा हो बार, मुझे याद टो है। भी दिया जाए और टो भी टूट गया। बहुत सारे थे। शेन वॉन, शेन वॉन, या where was it? शेन वॉन इन होबार्ट। अच्छा, होबार्ट, ओके। होबार्ट टेस्ट मैच में उसको आप स्कोर तो नहीं, मुझे आइडिया याद नहीं है, उसको मैंने मारा था टो पे, ही डिडंट बॉल द नेक्स्ट इनिंग, Okay. हिज टो वाज ब्रोकन। मुझे याद है Okay, 87 late में हम इंग्लैंड टूर था जी। तो इयन बॉथम वाज सर इयन बॉथम, लॉर्ड इयन बॉथम नाम। एक तो दोस्ती भी बढ़ी है उनसे अब, और प्लस इमरान भाई का और उनका आपस में, और 4 ऑलराउंडर थे 80s में, सर रिचर्ड हेडली, सर इयन बॉथम, लॉर्ड इयन बॉथम, द कपिल भाई एंड इमरान भाई। ये चारों का एक बड़ा ऑरा था, बहुत ऑरा था। तो हम जब पहुंचे तो इमरान भाई को ना मुझे पता था कि ये यू कैन रीड योर कैप्टन एंड के उनको बड़ी गर्मी है। बस कपिल देव से भी वो मुकाबला रहता था इनका टसल, सामने ठीक मिलते थे। तो जब मैच पे होते थे तो इमरान भाई का होता था कि मैं इनसे परफॉर्मेंस करूं, बैटिंग में बॉलिंग में भी। अब उसमें ना उसके अंगूठा थोड़ा दर्द हो रही थी, मतलब बॉल लगी हुई थी पहले से बॉथम को। तो आई थिंक टेस्ट था, शायद लीड्स था मेरे ख्याल में, या ओल्ड ट्रैफर्ड, द वन ऑफ द टेस्ट मैचेस। मैं वो रिवर्स स्विंग हो रहा था, मैं राउंड द कह रहे इसके गिट्टे पे मारो। मैं कह हैं, मैं कह बोल्ड ना करा, कह रहे नहीं तुम इसके पाँव का निशाना करो। अच्छा फिर मैं अब स्किपर की बात तो फिर माननी पड़ ली, मैं राउंड द विकेट से आगे किया सीधा उसके उसी पाँव पे, उसी अंगूठे पे वो गिरा है, बल्ला बुल्ला फेंक के उसने मुझे गाली निकाली। I remember he got very upset about it, बैट फेंक के, हेलमेट फेंक के, I remember वो that. purposely किया वो था। जानबूझ के, क्या बात, इसको कहते हैं कंट्रोल, एंड उसी जगह पे निशाना बिठाया, that's control. भाई साहब मेरा निशाना, भाई साहब देखे जमाना, भाई साहब तीर पे तीर चलो, भाई साहब बच के ना कोई जाए, भाई साहब। ऑलराइट, नेक्स्ट अप नौरीन का सवाल है। नौरीन का सवाल है निखिल चोपड़ा आपसे। नौरीन सेज, I love your earrings. Are they real diamonds? And is that the only jewelry that you wear? जी, एंड बिल्कुल नौरीन, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जी हाँ है,
अब फर्क ये है कि जो अपने वाले थे वो घर में पड़े या बीवी के पहन लिए हैं बीवी के पहन के आगे ये उनके हैं ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ले यार भाई इससे अच्छी आप मेरे को बताओ इससे अच्छी कंपनी हो सकती है 10 लोगों में पाजी लाल गोल्फ खेलते हैं आपके साथ सवेरे ब्रेकफास्ट और जिम अजय भैया के साथ बड़े हुए हैं गप्पे मारे हैं फकर पाजी जिस तरीके से शो चलाते हैं ट्रू पायलट इससे अच्छी लाइफ हो सकती है बिल्कुल रियल है इसके और चमक रहे हैं ऐसे कि आंखें चुंधिया गई हैं मेरी Not everything is अच्छा, और done she for said, money. and Noreen said that is there any other jewelry that you wear? आई वेयर जो कड़ा जो मैं बचपन से पहनता आया हूँ सो आई 24 कैरेट गोल्ड? 24 तो नहीं है अब 24 ये तो आप soft रहने दीजिए, होता है। अब आप क्या- और ये इयरिंग्स डायमंड है? हाँ हाँ है। तू आप केड़ा मुझे प्रोग्राम मतलब देख पूरा रहे हैं? फंसवाने के चक्कर में एक्चुअली होटल दे रस्ते वो नहीं लेकिन एक ओहो कराची होता तो मैं मिल लेता मैं क्या कोई टैटू शैटू नहीं मैंने पूरा फंसवाने की कोशिश हो रही है YouTube से कुछ सवाल आए हमारे पास दिस इज एजेंट फॉर गेमिंग आस्क द रूम क्वेश्चन फॉर एवरीवन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लीग्स विद प्लेयर बेस रिमेनिंग सेम और इंक्रीजिंग वेरी स्लोली same players playing multiple leagues does it affect their mindset towards international cricket they look fatigued mentally No, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और देयर शुड बी सर्टेन लॉ बिकॉज IL T20 में एक टीम का मैच था उन्होंने 200 चेस करना था अभी हाँ इस साल 200 चेस करना था और वो 15 ओवरों में 150 थे मैच जीत रहे थे 50 5 में 50 आराम से हो जाता है अभी 2 बिग हिटर ने आना था वो मैच हार गए अब वो मैच हार गए अगले दिन मैं देखा दोपहरी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे ने हैं नेक्स्ट डे दे वर प्लेइंग बांग्लादेश प्रीमियर लीग कुछ प्लेयर एक दिन बंदा वेट ही कर लेंदा है That's why he was in a rush. yeah no it's obvious it's not there should be ICC को इन चीजों पे नजर डालनी पड़ेगी कि भाई एक लीग खेलो unless until I don't know how अभी तो मेरा ज़हन उधर नहीं है मैं प्लान बता दूंगा but it's a very valid question very good कोई लॉयल्टी नहीं है कोई loyalty anymore आओ पैसे लो खेलो परफॉर्म करो doesn't matter just जाओ okay that's not that I think leagues have done that because naturally, I mean, one, you've taken away the choice from a player. Once you go into an auction or a draft, you don't know where you're going to play for. Whereas, past में जो था कि आप अपनी क्लब से खेलते थे, अपनी स्टेट से खेलते थे, अपने मुल्क से खेलते थे, तो जिस टीम से भी खेलते थे आपकी भी तो चॉइस थी. ऐसे ही. अब जब आप ऑक्शन में हैं या ड्राफ्ट है जो भी जिसके सिस्टम्स हैं, you are ready to play. Whoever picks you, you have to go and play whether you like the person or not. All right. With that, we're going to take a break here at the DP World Dressing Room. When we come back, we're going to tell you who the winner is and what's up tomorrow at the ICC Champions Trophy. Stay with us. I have always believed that cricket can play such a positive role in the lives of people and communities around the world. That's why I'm proud to be partnering with DP World in this new initiative to make cricket possible. We wanted to develop a truly unique and special cricket experience with everything needed to play cricket, including the bat, balls, and the scoreboard. And because it's made from a shipping container, we can use smart logistics to deliver it to communities that will benefit from it. Now I can bat like Sachin. It's just the first of 50 containers that we are creating. It's all part of our mission to make cricket possible. It's very thrilling and just the beginning of an exciting journey. DP World Dressing Room, and that truck that you just saw with Sachin's video, we have a smaller version of it right here with a ball sitting on top, signed by our 4 panelists here. Thank you, gentlemen. And we, in this break, have already decided who the winner is going to be and who's going to get that signed ball, which will be dispatched by DP World. After much debate in this break, we have concluded that Jay Shukla, for reminding us of our childhood with kite flying, is the winner. So congratulations, Jay. Aapko bahut mubarak ho. You won the DP World signed ball, and the DP World team will dispatch this to you. Somebody will get in touch with you via direct message. Can I make a request? Yes, please. Request ये है कि वो अब मतलब आज मैच तो हुआ नहीं है. हाँ. तो can I get like a point for
जो हम करते हैं। Can we have the leader table? आपका मतलब है वो बारिश का एक पॉइंट मिलना चाहिए? या एक मुन्नू ये दे जरा दो यार, लीडर, मैं- ये I'm जो just हमारा struggling. आपस का जो लीडर टेबल है वो जरा देख लेते हैं। I'm struggling. तेरी Need आपकी a one रिक्वेस्ट point. हमेशा विंगी चिब्बी होती है विंगी चिब्बी, Wingy chibi. Wingy chibi. That's a nice रिक्वेस्ट कभी सीधी हो सकती है? Ajay Paji, after that win of Afghanistan against England, is sitting right on top. Nikhil trailing right behind him. Wasim and Waqar absolutely crushing it at the bottom of the table. That's why I requested. You didn't hear me. no. I'm at the bottom, please. Yes. सबको नहीं एक एक मानते। मिलेगा, सब ऊपर चले जाएंगे एक एक नहीं, नहीं, मेरे को चाहिए ना। You just have to up the game with whatever is. किन्नी का आप करना मेरे कौन दो थे? काटकार के पाजी ने दे दो See, this is called friend. मेरे 4 काट कर सारे काट करके उनमें 4 इस करके किसी 2 कमा के कैसे यार तुसी की अपना I'm sorry. We are And this is DP World. We're having a little trade here, okay? well done. Yes, having a trade here. जहाँ जरूरत है उसको चीज पहुंचाना हमारा देखो क्या बात बाहर है. हो सकता है मैं कुछ और चीज इन्होंने पहुंचा रहा हूँ. मैं लोड पैनी है जिंदगी की Exactly. किसी सारे आदि We have 100%. made fantastic DP World ambassadors. Thank you, gentlemen. Really appreciate it once again. Jay Shukla, आपको बहुत मुबारक हो. Let's take a look what we have in store tomorrow. Tomorrow is a game we're all looking forward to. It's Afghanistan clashing with Australia. It's going to be live from Lahore, Getafe Stadium, Lahore. Very special game. We are looking at the weather. It's a little worrisome at the moment. It can clear up. We'll find out tomorrow morning. But this is the game, and Afghanistan, a lot of people now rooting for Afghanistan. A lot जाट of people- इंडिया कहाँ गई? कोई 2 हफ्ते पहले खेली थी. किधर गई? they had a week break. खेलेंगे जल्दी क्या है वो बगैर खेले क्वालिफाई कर गई है देखो सेमीफाइनल बर्थ आर सेट आप दोनों टेबल देख लें जो टॉप 2 टीमें हैं वही होंगी सिर्फ फर्क ये पड़ सकता है कि कौन 1 होगा कौन 2 होगा तो इंडिया का जो आई थिंक 2 को है लास्ट मैच ना Right, 2 right. तो वो Already decided? यार कौन खेलेगा किससे कौन कैसे? नहीं वही रह गया ना अब वो आखिरी में- सेमीफाइनल तो अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने कल रहता था हाँ तो तो टेबल का धर्म भरम हो जाएगा ना. अफगानिस्तान नहीं उसका नहीं बट बारिश है ना मैं इसलिए कह रहा हूँ Oh my It's goodness. sad. We'll find out tomorrow. It's We'll very know. sad. This is weather. You never know I would anything with be, weather. कल अगर बारिश है तो we can have a day off. There is no golf allowed. क्योंकि आज नहीं, सारी day बातें off. आज ही कर लें. हाँ, exactly. जाने का time आ गया. जल्दी All है right. सुबह में. Yeah, okay. We've done everything that we were supposed to do. It's all done. It was a washed out game in Rawalpindi. 1-1 point for Bangladesh and Pakistan. With that, I'd like to thank you all. Thank you, Nikhil. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Ajay. Always a And pleasure. we are going to be back here 12 noon Pakistan Standard Time. And wherever you are in the world, thank you for joining us. Keep joining us. You can watch us on YouTube, on Sports Central, and send us your comments. And now we're taking questions and comments from our YouTube as well. So please keep interacting, and thank you for all your support for making sure that we reach 26 million plus views so far in this ICC Champions Trophy. I'm Fakhri Alam. This is the DP World Dressing Room, and you're watching 10 Sports. 8-bit Gulkhan. Good night.